Good morning, all of you. Welcome in our class. Okay, our chapter 1, unit 1, some basic concepts of chemistry is running. Now, let's discuss our new topic. Today's new topic, which is stoichiometry and stoichiometric calculation. What is stoichiometry and stoichiometric calculation? So, see this. The word stoichiometry is derived from two Greek words. Suppose stoichios meaning elements, and metron meaning measure. So we are going to discuss measurement or calculation involved in the chemical reaction. What type of chemical reaction we have to do? So see this. Stoichiometry thus deals with the calculation of mass. Stoichiometry deals with the calculation of mass. हम यहाँ पर mass की study करने वाले हैं. Calculation involved. Sometime volume also, mass और sometime we calculate volume also of the reactant and the product. Mass of the reactant and the product involved in a chemical reaction. Okay, so what is stoichiometry? So stoichiometry deals with the calculation of mass of the reactant. Calculation करेंगे mass of the reactant and the product involved in a chemical reaction. First of all, let us consider the combustion of methane. This is the combustion reaction. Combustion of methane. This is the formula of methane, CH4 in gaseous form, 2O2, oxygen. It gives, when methane burns with oxygen, it produces carbon dioxide gas plus water. Okay, so see this. यहाँ पर कुछ भी नहीं है. Here see this. Here is 1, here is 2, here is 1, here is 2. So here 1 is called as stoichiometric coefficient. जहाँ पर ये 1 लिखा है, 2 लिखा है, या 1 लिखा और 2 लिखा है रिएक्शन के आगे वाला वर्ड्स, इसको हम बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. ओके, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. तो सी दिस methane's stoichiometry is 1, means 1 mole. 1 mole, you know already that what is mole, means 1 mole, and here stoichiometry is 2, means 2 mole. Here 1 mole, here this stoichiometry is 2, here is 2 mole. So means 1 mole react with 2 mole of oxygen, means 1 mole of methane react with 2 mole of oxygen. Simply, what is the statement of this? Means 1 mole of methane react with 2 mole of oxygen, produce 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water. Means when 1 mole of methane is combust, जब आप 1 मोल मीथेन को जलाओगे, so with 2 mole of oxygen के साथ में, with 2 mole of oxygen it produce 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water. This is our statement. Now let's look इस statement को consider. This statement can also be called as 1 molecule of methane. This is methane. So 1 molecule of methane react with 2 molecule of oxygen, produce 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecule of water. 2 molecule of water. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं. Now here see this. So 1 mole of methane means 16 gram of methane. तो मोल को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं. We can convert mole into mass. So 1 mole of methane is equal to 16 gram. 1 mole of methane is equal to 16 gram of methane. So 16 gram of methane combust, मतलब 16 ग्राम मीथेन when you combust, जलाओगे, 16 gram of methane will you combust with 64
gram. 2 mole of oxygen means 64 gram of oxygen. 2 mole of oxygen means 16 gram of oxygen. So when 16 gram of oxygen combust with 64 gram of oxygen, 16 gram of methane react with 64 gram of oxygen, it produce 1 mole of carbon dioxide means 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड. इसका मोलर मास 44 ग्राम आएगा. यू चेक. ओके, सो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस and 2 mole of water means 36 gram. So 2 mole of 36 gram is water. 2 mole means 36 gram water is produced in this reaction. Okay, so that when 16 gram of methane is combust with 64 gram oxygen, it produce 44 gram of carbon dioxide and 36 gram of water. See, हम इस रिएक्शन को ऐसे भी बोल सकते हैं, when all the reactant or when reactants and products are in gaseous form. Here methane is also gas. So 1 mole of methane, 1 mole is equal to 22.4 liter. 1 मोल मीथेन किसके बराबर होता है? 1 mole of methane is equal to 22.4 लीटर. 1 मोल 22.4 लीटर के इक्वल होगा एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट STP. So 1 mole of methane means 22.4 liter methane react with 2 mole of oxygen. 2 mole means 44.8 liter at STP, standard temperature and pressure पर. So 22.4 liter at STP, 22.4 liter methane react with 44.8 liter oxygen and produce 1 mole. 1 mole means 22.4 liter carbon dioxide plus 2 mole of water means 44.8 liter water. So when this react with this produce this. Okay, so इस तरह से ये रिएक्शन होगी. मीन्स 22.4 liter methane react with 44.8 liter oxygen and it produce 22.4 liter carbon dioxide and 44.8 liter of water. So this is the statement of the reaction. Okay, now from this relationship the given data can be interconverted. Follow. ये जो डेटा दिया है हम मास को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट फार्मूला और दिया हुआ है. डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. दिस इज द फार्मूला ऑफ डेंसिटी. डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. ओके, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. लेट्स सॉल्व some stoichiometric problems. Let's solve some stoichiometric problem. See this. Calculate the amount of water produced by the combustion of methane. Amount of water produced. Calculate the amount of water produced by the combustion of methane. मतलब मीथेन को कंबशन कराने पर कितना ग्राम वाटर प्रोड्यूस होगा. हाउ मेनी ग्राम्स of water will be produced from combustion of methane. Combustion of methane, this is our reaction. So first of all you have to convert this statement into chemical reaction. सबसे पहले आपको chemical reaction लिखना होगी. Without chemical reaction you cannot solve this problem. So this is the combustion reaction. Combustion of methane. Methane means CH4. So here simply write it CH4 and combustion जब भी होगा तो reaction with oxygen and whenever combustion takes place it produce carbon dioxide plus water. मीथेन का combustion जब भी whenever combustion takes place जब भी combustion होगा इसकी reaction means ऑक्सीजन से आपको करवानी है. ओके, और combustion होने के बाद में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो ऑलवेज बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. whenever a fuel is combust then it produce carbon dioxide and water. So next task is to
बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। ये जो आपने लिखी है रिएक्शन, इसको आपको बैलेंस करना होगा। विदाउट बैलेंसिंग यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो लेट्स बैलेंस दिस। हियर कार्बन इज 1 एटम, हियर इज 1 एटम। हाइड्रोजन इज 4, इस साइड में हाइड्रोजन 4 है, इस साइड में हाइड्रोजन 2 है, तो इसको 2 को 4 बना लो, तो सिंपली मल्टीप्लाइड विथ 2। सो हियर ऑक्सीजन, हियर 2, हियर 2 और 4, 2 और 2 4, तो हियर 2 से विथ मल्टीप्लाइज विथ 2। सो दिस इज अवर बैलेंस केमिकल रिएक्शन। नाउ we are solve the problem. We can, so this is molar mass of 1 mole, 1 mole, here 2 mole, here 1 mole, here 2 mole। तो आप देखो 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, मतलब 1 मोल मीथेन को जलाने पर 2 मोल पानी बन रहा है। सी, सो 1 मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 16 ग्राम। 1 मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 16 ग्राम। 1 मोल मीथेन बराबर कितना होता है? 16 ग्राम होता है। तो 2 मोल बराबर 2 मोल ऑफ वाटर का कितना आएगा मोलर मास? 1 मोल का होता है 18, तो 2 का 36 ग्राम, तो 36 ग्राम। सो 16 ग्राम से 36 ग्राम बनता है। 16 ग्राम से कितना बनता है? 36 ग्राम। ओके, दिस इज अवर क्वेश्चन एंड आवर क्वेश्चन इज सॉल्व। मीन्स 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम मीथेन को बर्न करने पर 36 ग्राम वाटर पैदा होगा। सो दिस इज आवर आंसर। हेंस 2 मोल ऑफ वाटर गिव्स 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। 2 मोल ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड, तो हमारा आंसर क्या हुआ? हेंस 36 ग्राम ऑफ वाटर, 36 ग्राम ऑफ वाटर is produced when 16 gram of methane is combust। ओके, मतलब 16 ग्राम मीथेन को जलाने पर 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होगा। 16 ग्राम ऑफ methane burned, combust, and then 36 gram of water is produced. Let's see another question. How many moles of methane are required to produce? How many moles of methane are required to produce 22 gram carbon dioxide after combustion? Here, this is the same reaction. First of all, write the reaction. CH4 plus oxygen, here combustion reaction means carbon dioxide plus water. Here you have to balance this 2 here and 2 here. Okay, so write the statement once again. यहाँ पर क्या पूछा है इसने? मोल्स में पूछा, how many moles of methane are required? How many moles of methane? So first one, 1 mole for 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जिससे पूछा उसका रिलेशनशिप हम देखेंगे, सिर्फ इन दोनों को भी छोड़ दो बैलेंस करने के बाद। 1 मोल से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। 1 मोल मीन्स 16 ग्राम ऑफ मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स 44 ग्राम ऑफ मीथेन। सो देखो 44 ग्राम मीथेन से 1 मोल बन रहा है, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड से कितना बन रहा है? 1 मोल मीथेन से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना, यही है ना। 1 मोल से 44 ग्राम बन रहा है ना, ये देखो, ये 1 मोल से 44 ग्राम बन रहा है। मोल और ग्राम का रिलेशनशिप देखो, 1 मोल किसके, 1 मोल से कितना बन रहा है? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना। तो 22 ग्राम से कितना बनेगा? 22 ग्राम मीथेन, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कितना मीथेन चाहिए? तो 22 ग्राम के लिए कितना चाहिए? ये दिस इज क्वेश्चन मार्क। सो इसका और इसका रेशो सेम होगा, तो यहाँ पर हम ये लगाएंगे इक्वल, इसको इससे डिवाइड और इसको इससे डिवाइड। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। सो हियर 1 मल्टीप्लाइड बाय 22,
ये इधर आ जाएगा और ये 44 ग्राम इधर आ जाएगा और यहाँ से हमारा ये आंसर आ जाएगा, जो भी ये वैल्यू है क्वेश्चन मार्क, है ना। सो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/2, कितना आएगा 1/2, काट लेना आप इसको, 1/2, 1/2 मीन्स 0.5 मोल, 0.5 मोल। तो देखो ना सिंपल, 1 मोल के लिए 44 ग्राम चाहिए, 44 ग्राम का आधा कितना है 22 ग्राम, तो 22 ग्राम के लिए कितना मोल चाहिए, तो ये मोल भी आधा हो जाएगा, जब इधर मास आधा हुआ है तो ये भी आधा हो जाएगा। सो 1 मोल के लिए कितना चाहिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन, मीन्स 1 मोल के लिए हमको 44 ग्राम चाहिए, तो 22 ग्राम के लिए हमको आधा मोल ही चाहिए, 0.5 मोल की जरूरत पड़ेगी। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, टुडेज लास्ट क्वेश्चन, after that we are going to end of the session. See this, calculate the mass of iron, mass of iron पता करना है आपको, you have to calculate mass of the iron which will be converted into its oxide Fe3O4, which will be converted, mass iron जो है वो कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम स्टीम, स्टीम मीन्स वाटर, मीन्स आयरन और स्टीम की वो रिएक्शन हो रही है, मीन्स कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड, ये जो आयरन, ये आयरन कन्वर्ट हो गया Fe3O4 में बाय द एक्शंस ऑफ 18 ग्राम स्टीम ऑन इट, मतलब 18 ग्राम स्टीम, स्टीम मीन्स वाटर, 18 ग्राम वाटर की रिएक्शन आयरन से करवाने पर, 18 ग्राम स्टीम की रिएक्शन आयरन से करवाने पर Fe3O4 बनता है। सबसे पहले यू हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, मीन्स आयरन एंड रिएक्शन ऑफ वाटर, सो आयरन Fe प्लस H2O क्या प्रोड्यूस हो रहा है Fe3O4, ये ऑक्साइड बनेगा, ये लिखा ना कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड Fe3O4। ओके, सो व्हेन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस देयर इज हाइड्रोजन इज ऑल्सो प्रोड्यूस, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी बनने वाली है। दिस इज अवर फाइनल रिएक्शन एंड योर नेक्स्ट टास्क इज यू हैव टू बैलेंस दिस केमिकल रिएक्शन, आपको इसको रिएक्शन को बैलेंस करना है। सो हाउ दिस रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड, हियर सी दिस Fe इधर एक है, इधर 3 है, तो इधर 3 लिख लो, इधर C हियर 3, ऑक्सीजन हियर 4, हियर 1, इसको 4 बना लो, तो 4 हो गए। हाइड्रोजन देखो इधर 4 2 जा 8 4 2 जा 8, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, इधर 2 है, तो इसको बैलेंस कर लेंगे, तो 2 को 4, 2 को 8 बना लेंगे, तो 4, ये हमारी बैलेंस हो गई। नाउ नेक्स्ट टास्क, हमको काय में कैलकुलेशन करना है, ग्राम में कैलकुलेशन करना है, तो 3 मोल इज इक्वल टू 4 मोल इज इक्वल टू 1 मोल, इसके आगे 1 है, हियर 4 मोल, इसका मोलर मास निकाल लो। आयरन का कितना होता है, एक आयरन के लिए होता है 56, फॉर सिंगल आयरन 56, हियर 3 है तो मल्टीप्लाइड विथ 3, ओके, एंड हियर एक वाटर का मोलर मास 18 ग्राम और 4 है मल्टीप्लाइड विथ 4, सो कितना आएगा ये 168 ग्राम, और ये कितना आएगा 72 ग्राम। ओके, तो देखो 168 ग्राम आयरन से 168 ग्राम आयरन के लिए हमको 72 ग्राम वाटर की ज़रूरत है। 168 ग्राम रिएक्शन करता है 72 ग्राम से, तो 18 ग्राम वाटर के लिए कितना चाहिए, 18 ग्राम वाटर के लिए कितना चाहिए, यहाँ पर मैं x लिख लेता हूँ, ठीक है। इसका और इसका रेशो सेम, 168 ग्राम के लिए 72 ग्राम चाहिए, तो ये वाटर 18 ग्राम स्टीम है, तो इसके नीचे 18 लिख देंगे, वाटर वाले के नीचे वाटर लिखेंगे। 18 ग्राम स्टीम के लिए कितना चाहिए, इसका और इसका रेशो सेम होगा, दोनों का रेशो, ये 8th क्लास का है, या 7th क्लास में सिखाया जाता है ये रेशो का, तो इसका और इसका रेशो सेम होगा। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। सो 168, ये 18 इसके मल्टीप्लाइड में, नीचे यहाँ पर 72, और ये x की वैल्यू क्या है हमारी, जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो आंसर, तो इसको सॉल्व करने पर क्या आंसर आएगा हमारा
42 ग्राम आयरन, 42 ग्राम आयरन। सो कितना हमको मास ऑफ आयरन होगा? सो मास ऑफ आयरन इज इक्वल टू एक्स क्या है? मास ऑफ आयरन ही ना, ये पूछा था हमसे। सो मास ऑफ आयरन इज इक्वल टू मास ऑफ आयरन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 42 ग्राम, मतलब 18 ग्राम स्टीम के लिए हमको 42 ग्राम चाहिए। 168 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 72 ग्राम वाटर चाहिए। ये आयरन है, हियर इट इज वाटर। सो ओके, सो 18 ग्राम वाटर के लिए कितना चाहिए? 42 ग्राम, मतलब 168 ग्राम आयरन की रिएक्शन से 72 ग्राम वाटर चाहिए। तो 42 ग्राम आयरन के लिए 18 ग्राम चाहिए। 18 ग्राम वाटर के लिए 42 ग्राम हमको आयरन चाहिए। 168 के लिए 72 ग्राम चाहिए, तो 18 ग्राम के लिए 42 ग्राम आयरन की ज़रूरत हमको पड़ेगी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट स्टाइक्योमेट्री एंड स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। मास की कैलकुलेशन कर सकते हैं, मास, वॉल्यूम, मास और मोल की कैलकुलेशन। इन नेक्स्ट टास्क वी विल डू रिलेशनशिप इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मतलब वॉल्यूम लीटर में है, सो हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम फ्रॉम मास और मास फ्रॉम वॉल्यूम और मोल फ्रॉम वॉल्यूम। ओके, सो नाउ whatever we learned, please practice it and please make notes। जो भी हमने सीखा है please make notes, and whatever you have problem please consult me or please mention me in our comment box। We will solve your problem। Okay, thank you, bye।